Good morning, class 6. Today we are starting the second chapter of civics, that is diversity and discrimination. And this is your book of political science, and you already have learned chapter number 1, that was about diversity. You got to know about Samir 1 and Samir 2. They were one story telling about two diverse peoples, how they were from different background, from different religion and different economic groups. So there are many things that makes us what we are, how we live, the language we speak and what we eat, where the game we play and the things we celebrate. So if you want to describe yourself, so it depends on how you are living in one place. If you live in Kumaon area, you can be called as Kumaoni person. And if you are speaking the language, maybe it is Hindi because you are from the North India, so it is depending on the geography of the place. And whatever you are eating, it also depends on the place you are living in, and the dresses you are wearing, it's also depend on the place you are living in, and the history, the games you are playing, and whatever you are celebrating, it depending on the religion you are following. So if you want to describe yourself, so there are many things on which your description is depend on, and those things are the geography and the history of the place where we live. So you will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. So you can see that India is a very diverse place, and there are different type of people, different religion, people of different religion, different languages are living in this country. So how many religions are there in the world? There are 8 major religions in the world, and every single one of them is practiced in India means. So you name the 8 religions, they are Christianity, Islam, Hinduism, Sikhism and Jain and many other religions. There are 8 major religions, and people are practicing each one of them in India means India has people who are following all these 8 major religions. So India is a diverse country. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. So in our country we are speaking 1600 languages, and that these 1600 languages are the mother tongue means the languages they are speaking, and there are 100 dance form, and you must be knowing about different dance form like Kathak, Bharatanatyam and many other dance forms. So there are 100 dance form and 1600 languages and 8 major religions we are following in this country. So India is a very diverse country. Yet this diversity is not always celebrated. What is happening? We don't celebrate the diversity, and we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. So why we are not celebrating the diversity? Because we feel safe and secure when we are with the people who are like us. If we are people around, Indian people are around us, so we feel secure. If we live in America and we try to find out the people who are from India or maybe from the southern Asian region, so we feel secure because whenever we find people who look, talk, dress and think like us, we feel safe and secure with those people. So we don't like diversity. Sometimes we meet people who are very different from us. We may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also form certain attitude and opinion about the others who are not like them. तो समटाइम व्हाट हैपन्स, हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे एकदम से स्ट्रेंज होते हैं, अलग से होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं. दे आर नॉट लाइक अस. So at times we may not understand or know the reason why they are different from us, and people also from certain attitude and opinion about the others who are not like them. तो कभी कभी जो हमसे एकदम से अलग से
दिखने वाले लोग और अनफेमिलियर लोग हमें मिलते हैं तो हम नहीं समझ पाते वाई दे आर नॉट सिमिलर टू अस। उनके पीछे डिफरेंट होने का क्या रीज़न है, नहीं समझ आता हमें। इफ़ वी आर मीटिंग पीपल कि वो अलग से क्यों हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग क्यों हैं, वट वाई दे आर ईटिंग डिफरेंट थिंग्स, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो हम उनके साथ, तो लोग जो हैं ऐसे लोगों के साथ अलग तरह का एटीट्यूड और ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। कि सपोज़ यू आर मीटिंग सम इंग्लिश पीपल और आप देख रहे हैं कि अरे आप उनको उनका हिस्ट्री नहीं पता, उनकी ज्योग्राफी नहीं पता कि वो इस तरह से क्यों बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी क्यों है, तो क्या हो जाता है, उनके बारे में ओपिनियन बनाने लग जाते हैं और लोग जो हैं वो डिफरेंट लोगों के बारे में डिफरेंट ओपिनियन बनने लग जाता है। एंड देन below are some statements on the people living in rural and urban areas. Tick mark those you get that you agree with. तो रूरल लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, तो पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस, उनके बारे में क्या क्या बातें कही जाती हैं। देखिए, ये कही जाती है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेज। कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा इंडियन लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। सेकंड थिंग कही जाती है, विलेज डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। ये कहा जाता है कि जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स जो हैं, दे डोंट केयर ऑफ देयर हेल्थ, अपना ध्यान नहीं रखते, एंड दे आर सुपरस्टिशियस मीन्स वो अंधविश्वासी होते हैं। मीन्स अगर आपने कह दिया बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दे विल नॉट गो थ्रू दैट वे, तो उस रास्ते से वो जाएंगे ही नहीं। अगर आपने कुछ और बोल दिया, दे आर सो मेनी सुपरस्टिशंस एंड दे फॉलो दोज सुपरस्टिशंस, ये कहा जाता है उनके बारे में। अब आप इफ़ यू आर एग्री यू शुड टिक मार्क इट, अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट एग्री यू कैन क्रॉस इट। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड लेजी एंड दे डू नॉट लाइक टू वर्क। ये कहा जाता है कि जो गाँव के लोग हैं वो क्या हैं, वो बैकवर्ड हैं, वो फॉरवर्ड नहीं हैं, वो प्रोग्रेसिव नहीं हैं, वो निगेटिव सी बातें सोचते रहते हैं और वो इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते और वो काम करना पसंद नहीं करते। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। और ये कहा जाता है कि जब पीक हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का टाइम होता है तो गांव के लोग जो हैं वो 12 से 14 आवर्स तक खेतों में काम करते हैं। और ये भी कहा जाता है विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजीनिक, वो अपना हाथ वाथ नहीं धोते हैं, हाइजीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो गंदे होते हैं, वो ध्यान नहीं रखते अपनी हेल्थ का, ये कहा जाता है। इफ़ यू आर रेडी आप उसमें टिक लगाएंगे, इफ़ यू आर नॉट रेडी देन यू हैव टू क्रॉस द पॉइंट। और अर्बन पीपल के बारे में कहा जाता है, लाइफ इज़ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। ये कहा जाता है कि शहरों में जो लाइफ है वो ईजी है, लोग यहाँ पर स्पॉइल्ड हैं, वो अपना काम खुद नहीं करते और वो लेज़ी हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। और शहरों में रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजारती हैं, वो अपने अपने आप में बिज़ी रहती हैं, पेरेंट्स लेट आते हैं, मदर भी जॉब करती हैं, फादर भी जॉब करते हैं, सो दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विद ईच अदर। पीपल इन टाउन ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। ये भी कहा जाता है कि सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते, वो दे जस्ट वांट टू अर्न द मनी, दे डोंट केयर अबाउट द पीपल, देयर रिलेटिव्स एंड द पीपल अराउंड देम। नेक्स्ट इज लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ये कहा जाता है कि शहरों में रहना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला है और बहुत सा पैसा किस में खर्च होता है, रेंट में खर्च होता है, किराए में चला जाता है और बसों के भाड़े में ही चला जाता है। सिटीज़ पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। ये कहा जाता है कि जो शहरों के लोग हैं वो क्या हैं, वो करप्ट होते हैं, उन पर भरोसा नहीं करा जा सकता, वो चालाक होते हैं। तो दीज आर द सेइंग्स अबाउट विलेजर्स एंड अर्बन पीपल। ये जो बातें हैं ये कही जा रही हैं, प्रेजुडिस हैं जो कि पहले से ये बातें लोगों के दिमाग में हैं। Some of the statement above see villagers are dirty, ignorant and superstitious and see people in cities as money-minded, lazy and cunning। अब आपने देखा कि क्या है कि लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो विलेजर्स हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं कि विलेजर्स जो हैं वो लेज़ी हैं,
या विलेजर्स जो हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, वो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वो बैकवर्ड हैं, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, या वो माइग्रेट कर लेते हैं गाँव में जाने के लिए, शहरों में जाने के लिए. सो वेन एवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव. अगर हम किन्हीं लोगों के बारे में अपने जो हमारे आइडियाज़ हैं वो हमेशा नेगेटिव रहेंगे, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि लेज़ी, कनिंग, स्टिंगी, some of the statement above, then these become prejudices that we carry about them. तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में उनके लिए प्रेजुडिस जैसे बन जाती हैं. हम लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं. अगर हम किसी को भी देखेंगे विलेजर को, हम सोचेंगे अरे ही मस्ट बी वेरी बैकवर्ड एंड ही मस्ट बी full of superstitions, or he must be backward and not following the modern agriculture technology or many other things. तो जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट है किसी के बारे में, किसी को देखते ही अगर हमारे दिमाग में ये सब बातें आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं prejudices. Prejudices means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudices का मतलब क्या है? किसी भी लोगों के बारे में हम नेगेटिवली बात कर रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं और हम उनको सोच रहे हैं अरे ये तो इन्फीरियर है, हम तो ज़्यादा अच्छे हैं. हम किसी बच्चे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे इसकी तो पढ़ाई में बेकार होगा, इसको स्पोर्ट्स नहीं आता होगा, ये तो गांव से है, इसको हाइजीन नहीं पता होगा. तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं. ये हमारे नेगेटिव आइडियाज़ हैं जो कि किसी बच्चे के बारे में, किसी को देख के, बच्चे या बड़े या रूरल पर्सन को देख के या अर्बन पर्सन को देख के हमारे ब्रेन में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडिस. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. हम जब ये देखते हैं कि किसी भी काम करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ एक तरीका है. सपोज़ हमें पढ़ाई करनी है, हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, पर एक बच्चा दूसरे तरीके से कर ले रहा है. वो 1 घंटे पढ़ के कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर ले रहा है, पर हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा तरीका अच्छा है, उसका तरीका गलत है. या हम सोच रहे हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बेहतर है, उसका खाना बेकार है. हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं उस बच्चे के बारे में. तो who may prefer to do things differently, उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं या उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो काम करने का तरीका उसका हमसे अलग है. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली. So if what we are doing, we are thinking that English is the best language, we should speak in English, we should write in English, and English is the best language. If we are thinking like that, and we are thinking that Hindi is not a good language, and or many Urdu is not a good language, then we are judging the other languages negatively. हम कह रहे हैं कि दूसरी भाषाएं निगेटिव हैं और वो बेकार, अच्छी नहीं है, इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं दूसरी भाषाओं को. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. तो हम किसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे? वी विल रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. We will not respect those people who will be who are speaking in Kumaoni or who are speaking in Hindi. So that are the prejudices in our mind about English language. So we can be prejudices about many things: people's religious belief, the color of their skin, the religion they come from, the accent they speak in, the clothes they wear. Often our prejudices about other are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in the way that hurt them. तो हमारे prejudices बहुत चीज़ों के बारे में हो सकता है, जैसे कि religious belief. If you are following certain religion, if you हम हिंदू हैं तो विल से समथिंग नेगेटिव अबाउट अदर रिलीजन्स. हम कहेंगे क्रिश्चियंस में ऐसे, क्रिश्चियनिटी में ऐसे होता है, इस्लाम में ऐसे होता है, सिखिज़म में ऐसे होता है, पर हिंदू आर बेटर देन ऑल दीज रिलीजन्स. ऐसे ही जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो बोलेगा कि हम इस्लाम धर्म के हैं, हमारे वहाँ ये पॉजिटिविटी है, दूसरे धर्म में ये नेगेटिव चीज़ें हैं. ऐसे क्रिश्चियनिटी वाला अपने रिलीजियस बिलीव्स को बेटर बताएगा, और हम बोलेंगे कि हमारे जो कलर का, जो स्किन का कलर है, इट इज़ बेटर, इट इज़ द बेटर फॉर्म, इट इज़ द बेस्ट फॉर्म. और दूसरे या कोई पर्टिकुलर कलर है, फेयरनेस जो है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आवर स्किन. तो ये भी जो हमारे बिलीव्स होते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडियंस आर बेटर देन साउथ इंडियंस, वट एवर. साउथ इंडियंस कह सकते हैं कि साउथ इंडियंस आर बेटर देन नॉर्थ इंडियंस.
और जो एक्सेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, जो हमारा बात करने का तरीका है, और हमारे जो क्लोथ्स हम पहन रहे हैं, हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन दूसरे की गलत है। तो हम इतने प्रेजुडिसेस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कभी कभी हम दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चे से, दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले बच्चे से, या दूसरी स्किन के कलर वाले बच्चे से हम उसको फ्रेंड नहीं बना पाते, क्योंकि दीज आर द प्रेजुडिसेस इन आवर माइंड। हम लोग समझते हैं वो गलत है, वो नेगेटिव है, और हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव बताते हैं। इससे हम उससे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। और बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बहुत बार इस तरह की हरकतें करते हैं कि हम उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, हम उससे गलत, उसको दुख पहुंचाते हैं, हम हर्ट कर देते हैं उसको। तो इस तरह से हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं उसकी वजह से किसी दूसरे बच्चे को, किसी दूसरे पर्सन को, किसी रूरल बैकग्राउंड के इंसान को हम हर्ट कर देते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे प्रेजुडिसेस। अब स्टीरियोटाइप्स क्या हैं देखिए। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ प्रेजुडिसेस, एंड नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। अब आपने देखा कि हम लोगों के देश में जेंडर डिफरेंस बहुत है। What does it mean to be a boy and girl? Many of you would say we are born as boy and girl. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. अब देखिए क्या हो रहा है कि हम अगर हम लड़की पैदा हुए, या हम बॉय हैं, या हम गर्ल हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे उसमें क्या है, प्रेजुडिसेस हैं चीज़ों के लिए, और इसमें स्टीरियोटाइप पैदा हो जाते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो these two sections according to what do you think is appropriate for the section. They are well behaved. if हम आपसे पूछा जा रहा है who are well behaved, boys or girls, तो आप लिखेंगे boys or girls whatever. Then they are soft spoken and gentle. They are physically strong, तो आप boys को बोलेंगे, soft and gentle आप girls को बोलेंगे, और whatever. They are naughty. They are good at dance and painting. They don't cry. They are rowdy. They are good at sports. They are good at cooking. They are emotional. These are the points. You can say who are these people, who are they are boys or they are girl. तो आप बता सकते हैं कि they are emotional, तो you'll say कि they are girls are emotional. They are good at cooking, तो आप कह सकते हैं कि गर्ल्स अच्छे हैं, तो आप टिक करेंगे इसमें। तो टिक करने से आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या इसमें स्टेटमेंट दिया है, आपके जो प्रेजुडिसेस हैं वो क्या हैं, आप क्या समझते हैं लड़कियां कैसे होनी चाहिए, या बॉयज़ को क्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, आप कहेंगे बॉयज़ होते हैं। तो ये प्रेजुडिसेस हैं हमारे दिमाग में। इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ द क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द बॉय एंड मैन। अगर हम कहें कि अरे वो रोते नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे, कौन होंगे वो, बॉयज़ और गर्ल्स? विल से बॉयज़ एंड मैन. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family member often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boy are brave, they don't cry." अगर कोई बच्चा बचपन में गिर जाता है, आप देखते हैं, तो वह how the parents are consoling him. They are saying, "Oh, you are a boy, you shouldn't cry. Boys don't cry." Means you are just telling him that boys don't cry. So this is in our mind, the prejudices in our mind that boys don't cry. As children grow up, they start believing that boys don't cry, so that even if the boy feels like crying, he stops himself from doing so. So, बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि बॉयज़ रोते नहीं हैं, तो जब वो बड़ा हो जाते हैं बच्चे और उनको रोने का मन भी होता है, तभी भी वो रो नहीं सकते। He also believes that crying is a sign of weakness. उनको कहा जाता है कि अगर जो बच्चे रोते हैं, बॉयज़ को रोना नहीं है, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. सो even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry on, and so pain and they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. अगर वो गुस्सा हैं और वो उनको पेन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है और वो रोना चाहते हैं, बट दे डोंट क्राई बिकॉज इट हैज़ बीन taught them that
They have been taught that boys don't cry. So this is the prejudices in their mind. If a grown-up boy cries and that he feels that other will either tease him or laugh at him, and so he stop himself from doing so in front of others. तो अगर कोई बड़ा बच्चा रोने लग जाता है तो he stops himself. Why? क्योंकि बच्चे उसको टीज कर सकते हैं. They will laugh at him. They will tease him. So he stops crying. This is the way boys and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each of one of us must behave accordingly. तो देखिए ये तरीका है कि हमको बताया जाता है कि गर्ल्स कैसे होते हैं और बॉयज़ कैसी होती हैं. गर्ल्स को ये करना चाहिए, गर्ल्स को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्ल्स को मेकअप करना चाहिए, बॉयज़ को नहीं करना चाहिए. गर्ल्स को आपको कुकिंग आना चाहिए, बॉयज़ चल सकता है. गर्ल्स बॉयज़ को मार्केट जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए. और बॉयज़ समटाइम बॉयज़ इन आवर एरिया दे स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज. उनको लगता है कि उनके घर में उनके जो बॉयज़ हैं, उनके आसपास जो बॉयज़ हैं वो अब्यूजिव लैंग्वेज, बड़े राउडी हैं, बड़े एब्सर्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. तो दे ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, क्योंकि दे स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. जो बातें हमारे दिमाग में हैं कि बॉयज़ ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसे होती हैं, उस तरह से ही बच्चे बिहेव करने लग जाते हैं. वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. तो हम क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को जो सोसाइटी ने उनके बारे में इमेज बना रखी है कि गर्ल्स ऐसे होती हैं, बॉयज़ ऐसे होते हैं, गर्ल्स कुकिंग करेंगी, उस इमेज में हम बच्चों को उसी तरह से बना देते हैं. You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. अब देखिए, अगर हम कहते हैं they are, आपको क्वेश्चंस दिए हैं कि कौन होते हैं सॉफ्ट एंड जेंटल, आर दे बॉयज़ और द गर्ल्स, तो आप कहेंगे वो गर्ल्स होते हैं. दे आर वेल बिहेव्ड, आपसे कहा जाता है गर्ल्स होती हैं. तो गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है धीरे धीरे जब हम बात बताते हैं उनको कि अ गर्ल हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड जेंटल, तो गर्ल बिकेम सॉफ्ट एंड जेंटल स्लोली. एंड इफ़ यू आर टेलिंग देम constantly that you are well behaved, you should be well behaved because girls should be well behaved, so they became well behaved. Do girls possess this quality at birth? क्या बर्थ के समय तो ये नहीं होता उनको, ये तो वो वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट एंड जेंटल नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हम उनको कॉन्स्टेंटली ये बातें बताते चले जाते हैं और जो धीरे धीरे जो गर्ल्स हैं वो वैसे ही बिहेव करने लग जाती हैं. When we fix people into one image, we create a stereotype. तो हम क्या करते हैं, बॉयज़ को एक अलग तरह की इमेज में फिक्स कर रहे हैं. जैसे कि हम बॉयज़ को कह रहे हैं यू शुड बी हार्ड, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू क्राई एंड मैनी अदर थिंग्स, फिजिकली स्ट्रॉन्ग. एंड तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype. अगर हम कहते हैं कि उस कंट्री के रहने वाले लोग स्टिंगी हैं, लेज़ी हैं, क्रिमिनल हैं, डम हैं, whatever, या उस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, उस सेक्स के लोग मेल या फीमेल ऐसे होते हैं, उस रेस के लोग ऐसे होते हैं, उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो रिच हैं या पुअर हैं वो लोग ऐसे होते हैं. अगर जब हम एक बात कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं. देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, in every country, in every religion, in every group, either whether rich or poor, male or female. तो कहीं भी स्टिंगी और लेज़ी पीपल और क्रिमिनल्स और डम कहीं भी हो सकते हैं. whether they can be from different countries, they can be from different religion, सेक्स, रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो कहीं के भी हो सकते हैं. रिच पर्सन जो होगा वो भी स्टिंगी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लेकिन हमारे पास क्या है, हमने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करे हैं. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. हो सकता है कि एक ग्रुप, एक रिलीजन के लोग कोई स्टिंगी हो, कोई लेज़ी हो, क्रिमिनल हो, डम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रिलीजन, उस कंट्री, उस सेक्स और उस तरह के लोग सारे के सारे एक से हों. एक हर रिलीजन में एक बंदा ऐसा हो सकता है. हर रिलीजन में कुछ लोग डम हो सकते हैं, कुछ लेज़ी हो सकते हैं,
हर कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए और उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल एंड विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखिए स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमको रोकता है। किस बात से रोकता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर आदमी स्पेशल है, आप स्पेशल हैं, आपका फ्रेंड स्पेशल है, हर लोग स्पेशल हैं, उनके पास अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अलग अलग स्किल्स होते हैं, उनके अलग अलग स्किल्स होते हैं, वो कुछ स्पेशल कर सकते हैं। कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है। हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं और यही चीज़ उनको दूसरे से डिफरेंट बनाती है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। वो कहते हैं कि एक तरह के रहने वाले लोग, सपोज ब्रिटिश पीपल ऐसे होते हैं, इंग्लिश पीपल ऐसे होते हैं, इस तरह से कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो गए उनको एक ही टाइप के पैटर्न में फिक्स कर देते हैं। Stereotype affects all of us as they prevent us from doing certain things and we might otherwise be good at. स्टीरियोटाइप जो होता है हमको किसी काम को करने से रोकता है। सपोज़ ये कहा जाए कि हिंदू रिलीजन में ऐसा नहीं होता तो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हल्द्वानी कुमाऊँ के रहने वाले लोग जो हैं वो ये नहीं करते, वो खाते हैं, ऐसे नहीं करते। तो जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमको किसी काम को करने से रोकते हैं, अदरवाइज़ हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सपोज़ ये कहा जाए कि जो एक बॉय है बहुत अच्छा डांसर होगा, या एक गर्ल है वो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन हो सकती है, वो सब्जेक्ट मैथ ले सकती है, लेकिन पहले ही मना कर दिया जाता है, तो फिर मना करने के बाद धीरे धीरे वो सब्जेक्ट वो नहीं लेती मैक्सिमम गर्ल्स। जहाँ जहाँ जो लोग स्टीरियोटाइप होते हैं, जहाँ पर वो लोग स्टीरियोटाइप को फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसा प्रॉब्लम करते हैं। अब है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम किसी लोगों अपने हमारे प्रेजुडिसेस जो बने हैं कि भाई वो ऐसा है, ये ऐसा है, और उसमें स्टीरियोटाइप फिक्स हो गया। जब प्रेजुडिसेस फिक्स हो गए कि इंग्लैंड के रहने वाले लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, और हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि पूरे इंग्लैंड के रहने वाले लोग जो हैं वो कोई पर्टिकुलर, सपोज एक एग्जांपल है कि वो ऐसे होते हैं, तो जब हम लोगों को उनके व्हेन पीपल एक्ट, जब लोग जो हैं अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप पर एक्ट करते हैं तब वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हमारे दिमाग में ये बात है कि ये इस धर्म के लोग हैं, इस कंट्री के हैं, इस रेस के हैं, इस सेक्स के हैं, ये इस तरह के होते हैं, और हम उनको उसी तरीके से हमारे जो दिमाग में ये स्टीरियोटाइप एक्ट करने लग जाता है, उसके हिसाब से हम एक्ट करने लग जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हम करने लग जाते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activity and taking up jobs, stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from some well or hand pump, or not allow them to drink tea in same cups or glasses as others, you are discriminating against them. अब देखिए क्या हो रहा है कि हम इतने अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप पर एक्ट करते हैं, जो हमारे दिमाग में बातें हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन को उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, हम उनको रोकना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम कहते हैं आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप तो उस धर्म को मानने वाले हैं, आप तो इस तरह के लोग हैं। या फिर हम उनको अपने आसपास जो हैं उनको आसपास रहने के लिए भी हम जगह ना दें कि आप इस धर्म के हो, उस देश के हो, उस रेस के हो, उस सेक्स के हो, और आप यहाँ नहीं रह सकते। और हम कह दें कि आप उस कुएं से पानी ले सकते हैं, आप उस कास्ट के हो, आप उस धर्म के लोग हो। या फिर हम कह सकते हैं कि आप उन्हीं ग्लासेस में चाय नहीं पी सकते जिसमें हम पी रहे हैं, सभी लोग पी रहे हैं। तो हम लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। अब डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न क्या हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। पहले, you probably recall for the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. Sameer 1 क्या था, he was Hindu, and Sameer 2 the smaller one जो अखबार बेच रहा था, he was Muslim. तो वो डिफरेंट रिलीजन्स के थे,
दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये तो डाइवर्सिटी है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन लिव इन वन कंट्री इन वन प्लेस, सो दिस इज़ डाइवर्सिटी। हावेवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स भी हो सकता है। सपोज किसी कंट्री में किसी एक धर्म को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं। सपोज एक धर्म, कोई धर्म है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, और वहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कम हैं, माइनॉरिटी में है सपोज, तो वो उनके साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे, उनके साथ नेबरहुड में रहने नहीं देंगे, उनको सर्टेन एक्टिविटी या जॉब लेने से मना करेंगे, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो जो डाइवर्सिटी है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन में चेंज किया जा सकता है। हमारे धर्म अलग हैं, वो डाइवर्सिटी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक मेजॉरिटेरियन जो ग्रुप है वो दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, follow a particular religion, live in a specific region, may be discriminated against as their customs और practices may be seen as inferior। अब देखिए क्या होता है कि किसी तरह के जो लोग हैं, जो अलग तरह की भाषा बोलते हैं, या किसी और धर्म के लोग हैं और किसी अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। सपोज़ आपने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे रीजन हैं, अगर कुमाऊँ आप हिंदी भाषी लोग जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं साउथ में जाके रहने लगे, तो हो सकता है कि साउथ इंडियंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि आप इस स्पेसिफिक रीजन से रहते हैं, आप उस लैंग्वेज को बोलते हैं, आप उस रिलीजन के हैं। या नॉर्थ इंडियंस के जो लोग हैं, मणिपुर के लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस तरह के तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एज देयर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। और हम कह सकते हैं कि अरे ये जो काम कर रहे हैं, जो इनका रहने का तरीका है, जो इनके पहनने का तरीका है, ये इन्फीरियर है हमसे, हम सुपीरियर हैं, हमारा तरीका अच्छा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजुडिसेस लेके चल रहे हैं और स्टीरियोटाइप बना दिए हमने उनको, क्योंकि हम निगेटिव सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो दूसरा आदमी है अगर वो दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमसे, हम लोग सुपीरियर है, वो हमसे इन्फीरियर है, और वो दूसरी तरह के कपड़े पहन रहा है तो वो इन्फीरियर है। तो इस तरह से जब हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, हम एक्ट करने लग जाते हैं ऑन आवर स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिसेस, तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो समीर दो वॉज पुअर, समीर दो जो था वो पुअर था, वो रोड पे अखबार बेचता था, उसकी मदर भी अखबार बेचती थी। अब उसकी मदर मेरठ चली गई थी, तो समीर दो पुअर था और समीर एक जो था वो रिच था। द डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, एक गरीब होना एक आदमी का और एक आदमी का अमीर होना। एक आदमी को एजुकेशन मिल जा रही है अच्छी सी, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, समीर एक स्कूल में पढ़ रहा है और समीर दो स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसको छोटी सी उम्र में काम करने के लिए आना पड़ रहा है। तो क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि वो पुअर है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है, वो इक्वालिटी नहीं है। अगर समीर दो चाहे स्कूल जाना तो समीर दो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास मनी नहीं है, पर समीर एक स्कूल जाना चाहे तो वो जा सकता है, ही गॉट मनी फॉर डूइंग सो। और समीर दो अगर वो चाहे किसी दिन काम नहीं करना तो इट इज़ नॉट हिज चॉइस बिकॉज ही हैज़ टू अर्न मनी फॉर हिज लिविंग, उसको अपने पैसा कमाना ही है, तो ही डजंट हैव एनी चॉइस। सो दिस इज इनइक्वालिटी, वी आर फोर्सिंग हिम टू डू वर्क इन अ सर्टेन एज, जो कि माइनर की एज है, उस वक्त काम करने पड़ रहा है उसको, दैट इज इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। अब लोगों के पास जो है बेसिक ज़रूरतों का सामान नहीं है। बेसिक ज़रूरतें क्या हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, शेल्टर नहीं है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं तो ये इनइक्वालिटी है। अगर सारे लोगों को खाना मिल जाएगा, हेल्थ मिल जाएगी, कपड़े और घर मिल जाएगा, तो उसके बाद इक्वालिटी आ जाएगी। फिर सबके सब लोग, समीर एक और समीर दो को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। अब पुअर लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहाँ, ऑफिस में भी हम पुअर लोगों के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर उनको नहीं देखना चाहते,
और स्कूल्स में भी गलत व्यवहार हो जाता है। कभी कभी कोई पुअर बच्चा होता है तो सारे बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसको बुली करते हैं कि तुम्हारी मदर वहाँ काम करती है, तुम्हारे फादर वहाँ काम करते हैं, तो उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है क्योंकि वो पुअर हैं। ये क्या हो गया, ये जो चीज़ें हैं पुअर होने की वजह से इनइक्वलिटी है, जो पुअर और रिच होने की वजह से इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उससे इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। और हो सकता है कुछ लोग गरीब भी हों और वो उस रेस को, उस कास्ट को, उस कलर ऑफ स्किन को बिलोंग करते हों जो कि वैल्यूड नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप कहेंगे कि आप इस रिलीजन के लोग हैं तो हम आपकी वैल्यू नहीं करते, आपका स्किन का कलर ऐसा है तो आप अच्छे हैं, और अगर वो नहीं है तो आप बुरे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग गरीब हों और उनका जो कल्चर है उसको वैल्यू नहीं करते हो, हम सोचते हैं कि इस कल्चर के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे ट्राइबल्स लोग हैं, सम रिलीजियस ग्रुप हैं और किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और बहुत से रीजंस होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण, क्योंकि एक तो वो गरीब हैं, दूसरा वो किसी पर्टिकुलर रीजन से हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, ट्राइबल्स हैं। हम समझते हैं कि ट्राइबल्स लोग बैकवर्ड होते हैं, ट्राइबल्स लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ट्राइबल्स को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। उनके कल्चर को हम इन्फीरियर तरीके से देखते हैं, हम सोचते हैं उनका कल्चर इन्फीरियर है। तो इस तरह से हम उनके, और वो पुअर होंगे क्योंकि वो ट्राइबल्स पुअर हैं या फिर किसी रीजन के लोग पुअर हैं, तो पुअर के साथ हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ द फेमस इंडियन वे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, आपने देखा है कि हमारे देश में जो है वो क्या है, कास्ट सिस्टम है। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है। उसमें जो हिंदू धर्म है उसको 4 कास्ट में डिवाइड करा गया है, और उसमें से जो एक कास्ट होती है उसको लोअर कास्ट बोला गया और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो बहुत से ऐसे हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ, जो नेता हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके साथ बहुत से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, फेमस इंडियन के साथ हुए हैं। तो उन्होंने उस वजह से इसके लिए काम किया है। अब देखिए, एक आपका पोर्शन है, A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. मुस्लिम्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसलिए वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or leave school after a few years. तो मुस्लिम जो बच्चों को, अगर डेटा देखा जाए तो ये डेटा निकल के आया है कि मुस्लिम लोग ही नहीं, कोई भी पुअर हो, कोई भी गरीब आदमी होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। भेजना नहीं चाहते वो, ऐसा बात नहीं है, बिकॉज दे आर पुअर सो दे कैन नॉट सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। अगर इंडिया के या किसी भी कंट्रीज़ के जहाँ लोग पुअर हैं, जितने भी पुअर लोग हैं, उनके पास बेसिक ज़रूरतें आ जाएं, उनको खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाए, बच्चों को मिल जाए, तो सारे के सारे बच्चे खुद ब खुद स्कूल जाना चाहते हैं। रीज़न क्या है नहीं जाने का? रीज़न यही है कि वो लोग पुअर हैं। वो अपने बच्चों को, कोई भी है, कोई भी पुअर आदमी है, वो अपने बच्चों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, क्रिश्चियन है, वो इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि वो पुअर है। Wherever efforts has been made to reach education to the poor, there is Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. जहाँ भी ये इस तरह का एक एफर्ट बनाए गए कि एजुकेशन जो है वो गरीब लोगों को पहुंचनी चाहिए, जहाँ पर ये कोशिशें करी गई कि गरीब बच्चों को भी एजुकेशन मिल जानी चाहिए, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। अब देखिए, समीर दो जो अगर रास्ते में अखबार बेच रहा था, अगर उसको स्कूल जाने का मौका मिलेगा और उसको खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाए, गवर्नमेंट दे दे, तो वो ज़रूर बच्चा स्कूल जाएगा। For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service
that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poorer family including Muslim girls attend school in much larger numbers. अब देखिए केरला में क्या क्या गवर्नमेंट ने कि स्कूलों के द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट, घर और स्कूलों के बीच में बहुत डिस्टेंस कम है, मतलब उन्होंने जगह जगह स्कूल खोले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नमेंट बस सर्विसेज लगा रखी हैं स्कूलों के से बच्चों को लाने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लेके आती हैं और टीचर्स भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं रूरल एरिया में। तो 60% जो टीचर्स होते हैं उनको विमेन टीचर्स को रख दिया, जैसे कि विमेन थोड़ा ध्यान दें बच्चों के ऊपर। और तो उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, परिवारों के बच्चे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उनके जो गरीब लोग हैं उनके परिवारों की बेटियां स्कूल आने लगी हैं। इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैज़ नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल। अब देखिए जो और स्टेट में क्या हो रहा है, और स्टेट्स में, और जो गरीब परिवार हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे ट्राइबल हैं, चाहे किसी और सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको स्कूल पहुंचने में मुश्किल होती है। अब पहाड़ में आप देखते हैं कि स्कूल बहुत दूर दूर हैं, टीचर्स को भी कितने किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, जो टीचर्स हैं उनको पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स भी कम है, तो उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो स्कूल नहीं पहुँच पाते। और इसलिए चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हों, चाहे ट्राइबल्स हों, चाहे सो कॉल्ड लोअर क्लास कास्ट की लड़कियां हों या बच्चे हों, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। देयरफॉर poverty not religion is the cause for non attendance of Muslim girls in स्कूल। तो ज़रूर इसकी किस वजह से मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जा रहे, जो स्टीरियोटाइप हमने बना दिया है वो इसलिए हो गया है क्योंकि वो मुस्लिम होने की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गरीबी है। तो गरीब कोई भी होगा, चाहे वो किसी ट्राइब का हो, किसी वो हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम के हों, क्रिश्चियंस के हों, कोई भी गरीब होगा वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना कैसे भेजेगा, उसके पास सिचुएशन ही नहीं है, उनके पास बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रही हैं, उनका घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, तो स्कूल कैसे भेजेंगे। तो जिसके पास भी ये बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सरकार ये सब ज़रूरतें पूरी कर देंगी, तो कोई भी गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। तो ये स्टीरियोटाइप है, इसको हमने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।